Hi guys, welcome to another episode of Solo Leveling. This is episode 10. So last episode के अंदर he got the potion and cured his mom. He got a new shadow white dragon. और अब जेजू आइलैंड की जो आर्क है वो इस एपिसोड से बिल्कुल एक तरह से स्टार्ट हो गई है. पिछले एपिसोड में उनका एक तरह से फ्रेंडली फाइटिंग मैचअप एक तरह से चल रहा था, तो मुझे लगता है उसके हम पहले तो कुछ देखेंगे और उसके बाद बस जेजू आइलैंड की आर्क स्टार्ट हो जाएगी. खैर, दिस इज एपिसोड 10. Without wasting any more time, let's just watch the episode. So this was the matchup. Oh, he can freaking grow. 始めましょうか。力比べが助かるよ。Okay. Wow. Oh. 相手は S 級の中でもトップクラスのハンターたち。手首をつかま Oh, れ he ただけだ。 transformed. こいつは好戦的なタイプではないよ。 Yeah. こういうの向いてないんだって。 Why? But you're a S rank. こいつを試しているのかもしれないな。俺を試験士に選んだのなら。 Okay. よろ力比べは俺の勝ちだ。 Oh. 俺の勝ちってことで。 Okay, he's good at dodging. つもり。次の手が読めない。マイ茶兵に舞うように戦う姿を前にすると嫌でもその意味を分からせられる。 Okay. Oh. He's going for her. Oh shit. 反射的に手が出てしまった。 On reflex. He's pissed now. ああなると何しでかすかわからないからな。 Okay. 余計なことをするようですが、親善試合の範疇を超えている気がして。 Okay. あのハンターは本当に魔法系なのか自分で確認するしかないか。 Yep, let's go. 全力を出したところで勝てる状況じゃなかった。 Okay, so the Japanese side is really strong. ギルドマスターの後藤が自分と手合わせ願えないかと。悪魔の城で磨いた力を試すいい機会だ。 Yeah, bro. There's 俺の前 flex. で笑っただと。ソンハンターが承諾されました。 On the 全力でかかっ condition. てくるなら応じる。 Okay. Is she going to? もしもし、ジェジュ島レイド守備班のことでご相談が。 Okay, defense force. 永久ダンジョンでの戦いは目にしたけど、S級相手に大丈夫なのかしら。私もチャハンターと同じ理由ですよ。もし俺の予想通りソンハンターが成長可能な覚醒者なら。それでは始めます。 Okay. Whoa. あのスピードと動き。これで魔法系だと笑わせる。 Yeah, what a joke. お前の化けの皮を吐いてやる。確かにこの人他の S 系とは格が違う。また笑った。 Yeah. 敵が見えないよ。よくかわしてるじゃないか。ただ攻撃をかわしてるんじゃない。相手の力を試してる。 Wow. Okay. 本気で潰す。 Sheesh. Oh shit. ソンハンター。 Yeah. あと一歩で片目を失うとこだった。手首を掴むとゲームオーバーだろ。あんたもこのまま終わらせたくはないはずだ。 Okay. Yeah. ソンハンター、お父さん、ここまでにしましょう。何かあっても誰も責任が取れません。余計なことをしましたか。いえ、つい熱くなってしまった。 Yeah. ゴー会長、どうしましたソンハンター。ジェジュ島レイドのことなんですが。
He's going to refuse. Yep. ソンハンターはジェジュ島レイドに参加しないんですね。こちらにはすでに15人もの S 級ハンターが15 S ranks. 今 Okay. 回こそ必ず。勝利してみせる。ただいま。お兄ちゃん遅い。お帰りなさいジヌ。ただいま。4年ぶりに目覚めた今の母さんには。だから俺は Yeah, he wants to ジェジュ spend 島に his は行 time かない。 with his family. 獲物が尽き共食いが始まった Okay. このまま Wow. ではいけない Look at この this. 島を出なくて Yep. ももっと強い子が王 Yep. 国の民を There he is. Whoa. Sheesh. The exoskeleton. इस डिज़ाइन को लेके लोग लगे हुए थे कहने के क्या बना दिया है. 強くなれ我が子よ Whoa. どうして私が守備班に参加しちゃいけないんですか？ You're a E rank, bro. ハンさんは E 級だし Yeah. Oh, she's going to join? ついに明日だ。ジェジュ島レイドが始まる。 Yep. こちら第一艦隊ジェジュ島近海目標地点に到着まもなく警戒海域に入ります。そんなんやってみなわからんよ जब ये सीजन आने लगा था मुझे लगा था शायद जेजू आइलैंड के आर्क इंक्लूड ना हो लेकिन इन्होंने पेसिंग ऐसे रखी है कि आर्क आ ही गई अंदर それじゃここはよろしく頼む。どうせ出番なんて来んでしょう。万が一のこともある。 This is the defense force and this is also the defense force. それに彼も参加を決意してくれたのは心強い。 Oh, the S rank healer. ビョング。 Yeah, he's going to play a really important part in this raid. ここが島の中心街か。こちらアルファ、総員応答せよ。生中継。はい。まあ事故のないよう10分遅延での放送ですが、ハンター Okay. 報道部の仮面激しい戦いになりますよ。大丈夫ですか？ご安心ください。こう見えて永久なんです。危険な撮影には慣れています。それは何より。今回失敗すれば我が国は地図から消えてしまうだろう。ではこれより第4次ジェジュ島レイドを開始する。了解。陽動隊が作戦を開始したようですね。奴ら Okay. も動き出したな。 Freaking hell. This many ants? Oh shit. 少々手荒くいきましょ Whoa. Okay. う。では皆さん、そろそろ降りましょうか。 Yeah, let's just down. 覚悟はいいか？私たちにならできる。行こう。 अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं इस एपिसोड को क्योंकि जो अगली 3 एपिसोड्स होंगी वो स्ट्रेट अप फाइट्स है. これでアリたちは女王の救援要請信号をキャッチ Okay. かもな健三はあっちで遊んでる。蓋はしました。陽動が効いているうちに進みましょう。 What? Damn. 一つ一つ入って確かめる時間はありませんからね。深く続いている穴を見つければいいんでしょう。どうやらあそこのようです。 Okay. 今回のレイドに参加する S 級ハンターたちは全員強い。あの人たちなら余裕でクリアできる。 Whoa. 皆さん、こちらに来てください。産卵場だ Yep. 女王の部屋も近くにあるはずです。見てください。あの卵。 It's freaking huge. 俺たちの任務は女王アリを倒すことだ。他のことは気にするな。もしあの大きさの卵から生まれたアリが存在するなら。面倒な奴らだ肩をやられちまった直してあげよっか。ただじゃ無理だけど。
また来たか。何が欲しい？ Oh shit. Here we go. No freaking way. Bro. इतने गंदे क्लिफ हैंगर्स हैं इस शो के मोस्टली. टेक्निकली देखा जाए अगर मैं ये शो डायरेक्ट करता तो मैं भी ऐसा ही क्लिफ हैंगर देता. लेकिन फिर भी यार अब चलो मेरे लिए तो ये है कि मैंने ज़रा लेट देखी एपिसोड. अभी 2 दिन रह गए हैं उसके बाद एपिसोड आएगी. लेकिन 1 वीक तक वेट करना भी आई मीन वेल वाओ. अच्छा सबसे पहले एक चीज़, मैंने मानवा तो पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि दिस मैनी एंड्स, क्योंकि मैं अभी तक ना बड़ा इसको इजी सा ले रहा था यार. अच्छा रेड है, एस रैंक्स हैं, वो सारे इतने वो डील कर लेंगे, ऐसा भी क्या मुश्किल है. लेकिन अभी जब वो वोल्केनो सा जो है, जो माउंटेन है उसमें से जब वो एंड्स निकल के आई हैं, नंबर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा नंबर है और ऊपर से हर एंड जो है वो तकरीबन ए रैंक की एंड है. ठीक है, तो या एस रैंकली मतलब कि 15 एस रैंक और थाउजेंड्स एंड्स जो हैं वो ओवरवेलम एक तरह से कर सकती है. 1000 नहीं बल्कि 1000 से भी कहीं ज़्यादा होंगी. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि ये दिस इज़ रियली ए सीरियस प्रॉब्लम. मैं इसको अभी तक ज़रा इजी ले रहा था, मैंने कहा अच्छा ठीक है. लेकिन खैर अभी तक के लिए तो एग्जीक्यूशन बड़ी मज़े की है, जो भी एंड्स की और ये जो भी एक तरह से अभी एनिमेशन का स्टाइल और ये चीज़ें जो भी चल रही हैं अच्छी चल रही हैं. ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी सीन अंदर से स्किप किए होंगे जिस तरह ये पहले भी करते आ रहे हैं. लेकिन वही बात है ना, ज़रूरी नहीं आपने ऑरा फॉर्मिंग करनी है. और वैसे भी ये इस क्लिफ हैंगर तक ले जाने के लिए उन्होंने मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें स्क्वीज़ की हैं. तो इस वजह से मुझे उन्होंने एक तरह से ये बनाया होगा कि यहाँ पे जाके एक क्लिफ हैंगर दे के अगली जो 3 एपिसोड्स हैं उसमें हम सारा इसको एक तरह से वो करेंगे, फिनिश करेंगे. अब होगा ये, जो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसके अंदर उस एंड की और एस रैंक्स की फ़ाइट्स होगी. ठीक है, एंड के ऊपर फिर से वो क्लिफ हैंगर आएगा. उसके बाद जो अगली एपिसोड होगी उसके अंदर उसकी और चिनवू की फ़ाइट होगी. फिर जो एपिसोड 13 होगी वो एज आ सीज़न के लिए फिर से हाफ तक मुझे लगता है वो सारा ये जेजू आइलैंड क्लियर होगा, इसकी जो स्टोरी होगी वो फिनिश होगी. और उसका जो हाफ होगा मुझे लगता है वो बस एक तरह से अगली आर्क के लिए सेटअप बिल्ड करने के लिए या ये सीज़न को एंड करने के लिए वो चीज़ होगी. तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें एक पूरी एपिसोड उनकी फ़ाइट की मिल जाती है, जो कि मैं चाहूँगा तो यही मोस्टली फैंस यही चाहेंगे कि हमें थोड़े एक्स्ट्रा सीन्स मिले, एक्स्ट्रा फाइट्स मिले, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा उस एपिसोड का. जैसे JJK ने किया था सुकुना वर्सेस महारागा को लेके कि उन्होंने इतना कुछ ऐड किया था. और मैं कहता हूँ मांगा के अंदर वो फ़ाइट काफ़ी मोमेंट अच्छा है कि जब वो महारागा हम पहली दफ़ा देखने को मिलता है, लेकिन हमें उसकी उस तरह कैपेबिलिटी, उसका फ़ाइट करना सुकुना के साथ, वो हमें उस तरह देखने को नहीं मिला था मांगा में. एनिमे ने उसको एक अलग ही लेवल पे लेके गया था और वो फ़ाइट देख के हर कोई बस एक तरह से. तो मैं चाहूँगा कि जिनवू और जो एंड की फ़ाइट है इनके दरमियान भी अगर एक्स्ट्रा सीन्स हों फाइट्स के और एनिमेशन टॉप क्लास हो, क्योंकि ये एक पूरे सीज़न की मैं कहता हूँ सबसे मेन फ़ाइट जो है वो ये है. यहाँ तक की सबसे मेन फ़ाइट एक वो ईग्रिस की मेन फ़ाइट है, उसके बाद ये मेन फ़ाइट है. तो मुझे लगता है कि इसको भी ऑल आउट जाना चाहिए. तो सारा जो बजट है, जो इन्होंने चीज़ें बचाई हैं वो इस पर लगे तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाए. इसकी नेक्स्ट एपिसोड के कुछ वो जो फ्रेम्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं उसके अंदर हमें पीरू की फ़ाइनल फॉर्म, एक तरह से जो फाइनल डिज़ाइन है वो देखने को मिला है. एंड ही लुक्स मेनेसिंग. काफ़ी लोग जो इसका ये पहले डिज़ाइन को लेके लगे हुए थे कि बीरू को क्या बना दिया, बड़ा कंपेयर कर रहे थे. बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरह से मजाक बनाया A1 पिक्चर्स का कि इन्होंने ये बीरू को क्या बना दिया. लेकिन वो जो एंड्स हैं वो इवॉल्व करते हैं, तो एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आफ्टर ईटिंग ए एस रैंक वो कहाँ तक इवॉल्व कर सकता है. और एक एस रैंक को तो वो ईट करने वाला नहीं है, ये तो अभी से पता लग रहा है. तो कि वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने एस रैंक को ऐसे ख़त्म किया है, तो वो इतनी ज़्यादा को खाने के बाद कहाँ जाके इवॉल्व होगा. तो मतलब कि इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. और उसके हिसाब से फिर उसका जो वो डिज़ाइन है वो चेंज होता है. तो या दिस इज़ गोइंग टू बी रियली गुड. वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. वेल दिस वाज एपिसोड 10 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2. रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. I'll see you in the next video. तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।